Now today we will study about the transportation in human. Clear? It's a very important process which is occurring in your body, and still you are not aware about this. Like the blood is continuously moving in your arteries and veins, but we are not aware of this. And today we will discuss how this process takes place in our body. When we see about the transportation in human, when we were studying about in plants, we know that for each and every task which is occurring in our body, we require energy, and for this energy we need continuous supply of energy. Clear? Fuel we require, and this for the fuel, आपने जो food consume किया है, you have taken the air inside your body, and now you have to distribute this structure. Clear? ये जो components है that you have to distribute to the each and every cell of your body, and at the same time cell ने जो waste produce किया है while performing all these activities, these waste should also be removed from the body. So for this transportation of nutrients, oxygen, hormone and the waste material, we require a transportation system in our body. So today we will study about this transportation mechanism in our body, which is called human. Clear point? So when we think about the transportation system, we generally study about the major three things we will study here. The first, the main circulatory organ in our body, that is called heart, and then we will study about the blood vessels which are responsible for the transportation of material inside the body, and then after we will study about the components of blood. Clear? Because the blood is the only connective tissue which is responsible for this transportation of these material inside the body. So let's start. When we talk about the transportation in humans, clear? The transportation in human is done with the help of a system which is known as circulatory system. We know the circulatory system, the components of circulatory system, the first one is blood, the second one is blood vessel, and the third one is heart, which is a pumping organ, and the blood vessels are the channels through which this transportation of material like blood will occur, and blood is the tissue that carries all this nutrient along with it. Clear? तो पॉइंट आ गया यहाँ पर कि जो यहाँ से आपको मिलता है फंक्शन. क्लियर? ये क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी, और वी कैन से द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. तो सबसे पहले इसका फंक्शन है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, it supplies nutrient, and as well as it removes carbon dioxide and other excretory products which are formed during physiological activities occurring in the cell. So clear, these are the function of circulatory system, or you can write the blood function in our body. नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ब्लड का और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके बॉडी में, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ WBC. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट व्हेन यू हैव स्टडीड कनेक्टिव टिश्यू इन योर अर्लियर क्लासेस. तो WBC जो है वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है और आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. दे आर द ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो यहाँ पर से आपके फंक्शंस आ गए. ब्लड के फंक्शंस भी ले सकते हैं, एज वेल एज यू कैन टेक द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो. नेक्स्ट, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट यू ऑल नो. क्लियर? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड ब्लड के पास में दो मेन कंपोनेंट्स हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, दैट यू हैव स्टडीड. ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, एंड इसके साथ में प्रेजेंट होती है ब्लड कार्पसल्स. क्लियर? ब्लड कार्पसल्स आप 3 टाइप्स के पढ़ के आ चुके हैं. दे आर द RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर आपको बहुत सारी सेल्स या ब्लड कार्पसल्स दिखाई देते हैं, एंड दिस प्लाज्मा is responsible for the transportation of food, carbon dioxide as well as nitrogenous waste. Nitrogenous waste generally जिसको body excretory system की help से eliminate करती है. All these waste and the nutrient is transported with the help of plasma. Oxygen. Clear? Very important question जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचा, लंग्स से इट गोज टू एल्वियोली. क्लियर? From alveoli this oxygen goes into RBCs. Clear? The main transportation of oxygen in our body occurs with the help of RBC, and other substances like salts,
they are also transported by the blood. Clear? Bicarbonate salts that you will study in higher classes. So these are the general introduction about the blood. When we talk about human heart, तो ह्यूमन बॉडी के पास एक पंपिंग ऑर्गन है. क्लियर? ये पंपिंग ऑर्गन का काम क्या है? ब्लड को पुश करना. और एक रिसेंट स्टडीज में अभी एक और स्टडी हुई है कि जो ब्लड है उसका काम सिर्फ पंप करना ही नहीं होता है, जबकि ब्लड का काम सक करना भी होता है. यानी जो वेस्ट ब्लड है, वेस्ट ब्लड इन द सेंस वी विल से द ब्लड विच इज कमिंग फ्रॉम द बॉडी बिकॉज मेनली इट कंटेन्स द वेस्ट मटेरियल, उस ब्लड को सक करने का काम भी पंप हार्ट करता है, विच इज अ पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. क्लियर? along with a network of tubes है. network of tubes के अंदर आपको blood vessels मिलेंगी, and in blood vessels we will study about the two types of blood vessels are present. The one is artery and the second one is vein. क्लियर? तो उसके अलावा ये जो ब्लड वेसल्स है ये हर सेल्स तक पहुंचती है और हर सेल को जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है. और ये जो नेटवर्क है, अगर ये किसी वजह से डैमेज हो जाए तो ये नेटवर्क खुद ही हील हो जाता है. आपके बॉडी में अंदर अगर कभी इंजरी हो जाती है तो वो इंजरी ऑटोमेटिकली जो इनर बॉडी पार्ट्स है वो अपने आप को खुद रीहील कर देते. नेक्स्ट आता है पॉइंट. अब वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हार्ट. बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही. अगर आप कोई एनटीएससी ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा. हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एक मस्कुलर ऑर्गन है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मसल्स दैट यू नो. ठीक है? अब मसल्स को अगर हम नाम दे तो दे आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. क्लियर? कार्डियक मसल है. लोकेशन इसकी कहाँ है? इट इज लोकेटेड नियर द चेस्ट. क्लियर? इट इज समहाउ, अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो हमने ये लंग्स पढ़े हैं. क्लियर? ये लंग्स हो गए और इन लंग्स के बिल्कुल बीच में यहाँ पर सिचुएटेड होता है आपका हार्ट. क्लियर? इट इज जस्ट situated in the chest cavity. Clear? Between the lungs. Clear? Slightly towards the left side is thoracic region. Thoracic word का meaning ही क्या होता है? Thoracic means chest region. Clear? तो जो chest region के अंदर slightly left होता है, in the sense कि ये आपकी median line पे ही है. जो बॉडी है उसकी बिल्कुल मीडियन लाइन पे है, बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड. इट्स नॉट वर्टिकल पोजीशन में नहीं है. इसका जो पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है. क्लियर? दिस इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. क्लियर? हार्ट इज अ मेन पंपिंग ऑर्गन. अगर हम हार्ट को देखें तो पूरे हार्ट को हमने 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है. ये 4 चैम्बर्स की सिग्निफिकेंस यही है कि बॉडी के अंदर कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन, वो कभी भी मिक्स ना हो. तो पॉइंट आ गया, सेपरेशन के लिए बहुत जरूरी है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए वी हैव डिवाइडेड हार्ट इंटरनली इनटू 4 चैम्बर्स. उसमें से जो अपर 2 चैम्बर है, अगर हम इसको एक बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह से 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है हार्ट के अंदर. तो जो अपर 2 चैम्बर्स हैं दे आर नोन एज एट्रिया. In some book you will find atrium. In some book you will find auricles. Clear? These are the terms which are given to the upper 2 chambers of the heart, and these lower 2 chambers they are known as ventricles. Clear? तो जो upper 2 chamber है they are called atria, and then lower 2 chambers are known as ventricles. This is the structure of human heart. Clear? The highly muscular organs throughout the life ये बीट करता है. इसमें कार्डियक मसल्स की प्रेजेंस होती है और जो मसल्स कभी भी फैटिकनेस शो नहीं करती, यानी ये थ्रू आउट लाइफ पंप करता है, कभी भी थकता नहीं है. तो इसको जब हम यहाँ पर नाम देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, अभी हमने जो 2 चैम्बर्स की बात की उसमें आपको सबसे पहला चैम्बर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड राइट ऑरिकल. क्लियर? देन सेकंड इज लेफ्ट ऑरिकल, right ventricle and left ventricle. These are the 4 chambers of the heart. क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं कि जो
हार्ट है उसके अंदर आप इसका जो मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इस मूवमेंट को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर? कहाँ से आ रही है? फ्रॉम लेफ्ट लंग्स, और 2-4 पल्मोनरी वेन्स होती है जो लंग्स से आती है। फ्रॉम लंग्स दे एंटर इनटू लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल इट गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल आप एरो देख रहे हैं, इट गोज यहाँ पर। क्लियर? विच इज नोन एज ऑर्टा। ऑर्टा में से जाने के बाद ये ऑर्टा आपको यहाँ से घूमकर यहाँ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्टा। ये जो डिसेंडिंग ऑर्टा है ये पूरे ब्लड बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और यहाँ से आपको असेंडिंग ऑर्टा जो आपके अपर पार्ट को, यानी हार्ट अगर सिचुएटेड है थोरेसिक में तो अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई होती है असेंडिंग ऑर्टा से, और लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई होती है डिसेंडिंग ऑर्टा से। क्लियर? ये तो हुआ बॉडी को ब्लड गया। अब बॉडी से जो ब्लड आ रहा है तो लोअर पार्ट से आ रहा है थ्रू इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? नीचे से आ रहा है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आपको ये ध्यान रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द रेड, जितना भी रेड पार्ट है इट शोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? और जब यहाँ पर जो ब्लू कलर का इंडिकेशन है दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो जो ब्लू कलर की वेन्स है यहाँ से आप देख रहे हैं कि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो किससे आ रहा है? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर यानी लोअर, एंड देन ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे सुपीरियर वेना केवा, यानी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ है वो सुपीरियर वेना केवा। दोनों वेना केवा आप देखेंगे कहाँ ओपन होती है? राइट ऑरिकल्स में। It opens into right auricle. From right auricle it goes to right ventricle, and then from right ventricle it goes to pulmonary artery. आप देख सकते हैं pulmonary artery के 2 पार्ट दिए हुए हैं, राइट लेफ्ट साइड पे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड पे। तो देन ब्लड कहाँ गया? लंग्स के पास गया। क्यों लंग्स के पास जा रहा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड जो है लंग्स के पास क्यों भेजा जाता है? क्योंकि लंग्स में ही ऑक्सीजन है, इसलिए ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है। तो लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजन लेकर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और हार्ट का जो राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड 4 चैम्बर हार्ट में होने की वजह से ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा उस डायग्राम पे। ये हमने फ्लो लिया है कि किस तरह से ब्लड जा रहा है, इसको आपको अपनी नोटबुक में पैरेलल में मेरे साथ में ड्रॉ करना है ताकि आपको चीजें याद रहे। क्लियर? हमने सबसे पहले देखा कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे जाता है। सबसे पहले जो वेस्ट ब्लड है वो किसके थ्रू कलेक्ट हुआ है? वेस्ट ब्लड, या फिर हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा जो आपके लोअर और अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, एंड देन वो कहाँ ओपन होता है? राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में। क्लियर? राइट ऑरिकल से इट गोज टू राइट वेंट्रिकल, वहां पर वाल्व्स प्रेजेंट है। ठीक है? इस डायग्राम उसको हम यहाँ से देखते हैं, ये दिख के आपको राइट ऑरिकल एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में आपको ये वाल्व दिखाई दे रहा है। क्लियर? दिस वाल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात जब की जाती है तो इसमें ऐसे 3 कस्प है, that's why it is known as tricuspid valve. Clear? This valve is present between right auricle and right ventricle. तो right ventricle से then it blood goes to pulmonary artery, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है pulmonary artery. The word pulmonary word का meaning होता है lungs, तो it goes to lungs. यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज द वाल्व. दिस वाल्व इज नोन एज पल्मोनरी वाल्व बिकॉज यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है. लंग्स में गया ब्लड, लंग्स में यहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुआ है, यानी ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है. अब ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर हम लिख देते पल्मोनरी, इसको हम रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक, पल्मोनरी
वेन के थ्रू जो ब्लड है वो लंग्स से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, आपको यहाँ से दिख रहा है, दिस इज द पल्मोनरी वेन, दे आर द कमिंग फ्रॉम लंग्स, एंटर्स टू कमिंग टू लेफ्ट ऑरिकल एंड गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट है, जैसे ऊपर वाल्व प्रेजेंट था, बट यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट है दैट इज नोन एज बायकस्पिड वाल्व। बायकस्पिड वाल्व जो आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है, इसका दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जिसको आपको याद रखना है। बायकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस बायकस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड दिस मिट्रल वाल्व बायकस्पिड इसलिए बोला क्योंकि इसमें 2 कस्प है, इस तरह से। नीचे ट्राइकस्पिड में 3 कस्प थे, दिस इज नोन एज 2 कस्प। आपने मिट्रल वर्ड यहाँ पर क्यों लिया है? क्योंकि मिट्रल जो होता है वो जो शेफ लोग जो कैप पहनते हैं इस टाइप का, इस शेप में दिखाई देता है, इसलिए इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल से गोज टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू bicuspid valve, and then from left ventricle it goes to aorta, descending aorta and ascending aorta, clear? और aorta से it goes to body, और body को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो थ्रू दिस आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता है। बहुत अच्छे से आप इसका फ्लो बना देंगे। द फ्लो ऑफ ब्लड इन योर बॉडी स्टार्ट विथ वेना केवा, it opens into right auricle it goes to right ventricle through tricuspid valve, goes to lungs through pulmonary artery where oxygenation will take place, and the oxygenated blood then through pulmonary vein it comes to left auricle. From left auricle it goes to left ventricle through bicuspid valve, also known as mitral valve, and from left ventricle it goes to the body through aorta, which is ascending and descending aorta, and in this way your body gets oxygen, nutrients and hormone, all the important structure जो सेल को उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में जो आपने डिफरेंट चैम्बर्स पढ़े उनका काम क्या है कि वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको मिक्सिंग से प्रिवेंट कर सके फ्रॉम द ब्लड विच इज कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जो चैम्बर्स का फॉर्मेशन है हार्ट के अंदर उसका मेन रोल क्या है? ताकि जो ब्लड है उसकी कभी भी मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रह सके। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको लंग्स में लेकर जाना है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में से लेकर कहां पर लेकर आएंगे? हार्ट में। जो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड हार्ट में आया है हार्ट उसको पंप कर देगा और जो बॉडी है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड गेन करेगी। क्लियर पॉइंट? दिस इज द मैकेनिज्म हाउ विच योर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑपरेट्स इन योर बॉडी। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो जनरली लंग्स से आया है और कहाँ जाता है? थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। क्लियर? थिन वॉल्ड इसलिए बोला है क्योंकि जो ऑरिकल है उनका काम ब्लड को रिसीव करना है, इसलिए उनकी जो वॉल है वो जनरली थिन होती है और उसके बाद में लेफ्ट साइड पे आता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स सबसे पहले रिसीव करता है। जो लेफ्ट ऑरिकल है वो रिलैक्स होता है और उसमें सारा ब्लड जो है वो धीरे धीरे कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद में लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड किस में एंटर करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कोई भी चीज जब वो गेन कर रही होगी या फिर कलेक्ट कर रही होगी उस समय वो एक्सपांड होगा, रिलैक्स होगा। तो सबसे पहले जब लेफ्ट ऑरिकल ब्लड रिसीव कर रहा था तब वो रिलैक्स था, फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करेगा तब वो रिलैक्स होकर एक्सपांड हो जाएगा सो दैट ब्लड उसमें इजीली कलेक्ट हो सके। देन जब मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो हार्ट में से निकल के बॉडी तक पहुंचता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात हो रही है यहाँ पर। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड, जब कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो ब्लड को सप्लाई करेगा और जब कोई चैम्बर रिलैक्स होगा तब वो ब्लड को
कलेक्ट करेगा। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर ऑरिकल ब्लड रिसीव कर रहा है तो ऑरिकल रिलैक्स होगा, एक्सपांड होगा। अगर वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर रहा है तो वेंट्रिकल जो है वो एक्सपांड होगा और रिलैक्स होगा। अब पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि सेप्टम प्रेजेंट है ना, सेपरेशन प्रेजेंट है राइट साइड और लेफ्ट साइड में। क्लियर, हार्ट का अगर ये पार्ट हम देखते हैं तो इस पार्ट को अगर हम कंसीडर करें तो जो आपका लेफ्ट साइड है, क्लियर, दिस इज द लेफ्ट साइड। अगर हम इसको देखें तो दिस लेफ्ट पार्ट ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो राइट पार्ट है दैट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, तो पॉइंट ये हो गया कि ये सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि दोनों की मिक्सिंग कभी भी नहीं हो और इसकी वजह से हाईली एफिशिएंट सप्लाई में होती है बॉडी को ऑक्सीजन की, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड होने का कारण ये है कि हमारे बॉडी को जो ब्लड मिलता है वो प्योर ब्लड मिलता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, उसमें CO2 की प्रेजेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हार्ट में 4 चैम्बर्स है। ये 4 चैम्बर इस बात की एंश्योरिटी देते हैं कि कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसकी मिक्सिंग नहीं होगी। सो दिस इज यूजफुल। अब आपका ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ से कि जिन एनिमल्स की हाई एनर्जी नीड है, क्लियर, जिनको बहुत लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स, इसलिए ध्यान रखना बर्ड्स एंड मैमल्स दे बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से उनको बहुत हाई रिच ऑक्सीजन ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉन्स्टेंटली दे यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज दे आर द होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। तो वार्म ब्लडेड होने की वजह से उनको लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए यही 2 ग्रुप्स हैं। वार्म ब्लडेड के अंदर आपको 4 चैम्बर हार्ट दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 चैम्बर हार्ट इस बात की एश्योरिटी देता है कि कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। एनिमल्स जिनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते हैं और वो चेंज करते रहते हैं ना, जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। क्लियर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनमें बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूस एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। एनिमल्स जिसमें आएंगे आपके एम्फीबियंस एंड मैनी रेप्टाइल्स, क्योंकि इसमें क्रोकोडाइल को हम इंक्लूड नहीं करते। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है उनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने पढ़ा बर्ड्स और मैमल्स के पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वेयर इज एम्फीबियंस, क्लियर, और जो रेप्टाइल्स है दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। मैनी रेप्टाइल्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो क्रोकोडाइल है उसके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये इनके पास में कुछ अमाउंट में जो उनका ब्लड है ना वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि 4 चैम्बर्स होते हैं तो कभी भी मिक्सिंग नहीं होती, बट दे हैव 3 चैम्बर्स। तो दे हैव जो इनकी बॉडी को जो ब्लड मिलता है वो प्योर ब्लड नहीं होता, उसमें स्लाइटली मिक्स ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, और इसी मिक्सिंग की वजह से दे आर कोल्ड ब्लडेड इन द सेंस कि अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यूस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में फॉर्म होते हैं, इसलिए एक बार आप इसके फ्लो को पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार हार्ट के डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमने 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चंस भी आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो मच। वी आर एंडिंग दिस today's topic with this. Thank you so much.